Hello, my dearest friends. I hope you are doing great. Welcome to CGB Mentors. My name is Sonika Saini. So, this is our second video regarding UPSC EPFO series. Previously, हमने एक वीडियो बनाया है that is all about the exam analysis and exam pattern, right? That video is more about that how more than 55% of your paper, that is about 60 to 65 questions, comes from only 4 subjects, है ना? तो आप जाइए, it is very important if you are planning to give UPSC EPFO. I have bifurcated all the subjects into 4 parts. That means सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन से देने चाहिए 4 सब्जेक्ट्स, देन उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा होना चाहिए. Doesn't matter which background you have, right? It is very important to see and gaze कि सबसे ज़्यादा questions आपके कहाँ से आ रहे हैं, and they are mostly static in portion, they are not dynamic, and there's a stability in those 4 subjects. हर साल वहाँ से questions बन ही रहे हैं. So it will be a very helpful video for you. Now, this is the second video in our series, that is the UPSC EPFO exam strategy for non-UPSC aspirants. Okay, ma'am. Why non-UPSC aspirants? Because there's a myth, right? एक myth बना हुआ है कि UPSC EPFO is for UPSC aspirants only, and they have edge in our exam, in this examination. And why would we give this exam? हम क्यों दें जब उनको इतना edge है, उनको ज़्यादा knowledge है, वो clear कर जाते हैं. But this is a myth. The only requirement is that if you're ready to do the hard work, if you're ready to do the hard work that is comparable to the UPSC aspirants, then you can definitely crack this exam. Why and how, I will tell you. Because even when I was making for this video and I was giving research, तो उसमें I just realized that the non-UPSC aspirants have more edge in this examination. कैसे अभी हम इस चीज़ को देखेंगे, right? And I can guarantee that at the end of this video, ये जो आपका mindset है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका completely change हो जाएगा. Then it's up to you whether you want to give this examination or not. ठीक है? My idea is to basically change this mindset and to burst this myth. So myth is that this is for UPSC, EPFO is for UPSC aspirants, but the reality is that when you see the sections of the subjects, they are a clean slate for everyone, right? They are a clean slate. The background or the type of questions or the subjects, the syllabus है UPSC EPFO का, it is in such a manner, right? It gives you a level playing field whether आप UPSC से हो या आप नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से हो. ठीक है, चलिए. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एज नहीं है, उनको भी है इन देयर ओन मैनर, राइट? लेकिन आई पर्सनली बिलीव व्हेन आई वाज मेकिंग रिसर्च, तो उसमें क्या था, नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ज्यादा एज मिल रहा था. कैसे, अभी हम बात करते हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू डू दीज 3 स्टेप्स. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या, जिसके बारे में मैं बारी बारी बोल रही हूँ. सी पेपर, ठीक है. अगर आप एक दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन, देन यू शुड डेफिनेटली सी पेपर कि कितना जानते हो. ठीक है. अब देखो उस पेपर से क्या होगा कि आपको ये एनालाइज होगा कि अगर मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो यू विल बी एबल टू सी कि पहले क्या मुझे, डू आई नो दीज कीवर्ड्स, क्या मुझे ये आता है या थोड़ा भी आता है, इन द सेंस कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मैं रिवाइज करूंगी या करूंगा, मेरे को ये चीज़ आ जाएगी. सो हाउ मच यू आर एफिलिएटेड विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मच यू आर एफिलिएटेड विद द टाइप ऑफ कीवर्ड्स दैट यू सी इन द प्रीवियस. तो आप कौन सा पेपर उठाएंगे, राइट? देयर वाज अ कंबाइंड एग्जामिनेशन in the year 2025 that happened in November, 31st of November के आसपास कुछ हुआ था, 30th November सॉरी, ठीक है, 31st होता नहीं है. So in this there is one exam that is EO, AO and APFC का combined examination हुआ था इस बार. तो आप जाके देखेंगे. एंड फॉर दैट मैटर आई हैव ब्रॉट सर्टेन एग्जाम्पल्स फॉर यू कि कैसे करना है, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे. देन उसके बाद एग्जाम एनालिसिस देखना है एंड आपको सिलेबस पैटर्न देखना है. नाउ दिस, ठीक है, and this, these are 3 different things. When I say exam pattern, that okay, there is phase 1 and there is phase 2, or phase 1 is prelims objective type questions, phase 2 is interview. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कितना क्या कैसे मार्क्स का होता है, आप वहां जाके देख लेंगे. नाउ एग्जाम एनालिसिस इज आल्सो इन द फर्स्ट वीडियो. दिस टू हैव बीन कवर्ड इन द first video that we have analyzed the pattern of the last 3 years, last 3 papers कि कैसे क्या आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस आ रहा है. Coming to the syllabus, we will bring one more video that is going to decode the syllabus, right? That is going to decode the syllabus in a very detailed manner कि if suppose if the syllabus is social security, labor laws and industrial relations, then what are the things that shall be covered,
what are the things that shall be covered. If the syllabus is quant, then what are the topics that shall be covered. ठीक है, so ये इसके लिए हम वीडियो ले आएंगे. Now previous year paper analysis, देखो ये आप खुद भी कर सकते हो. And for that matter, we will also bring previous year paper analysis subject wise, not year wise, but the subject wise. For example, I will be taking labor laws and industrial relations, so I will be bringing the analysis for the previous year labor laws की type of questions and how from that we will analyze that how we are going to cover further. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, राइट. अब देखो ये वाला स्टेप मैंने आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए लेके आई हूँ कि आपको जो है उस चीज को कैसे करना है. नाउ दिस इज द इंग्लिश क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज द इंग्लिश क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन, राइट, 11th 12th, आई होप दैट इज विजिबल, राइट. ये आपका इंग्लिश है. अब देखो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, they have asked about the vocabulary. They have asked and देखो इन्होंने डायरेक्टली vocab नहीं पूछी है कि भाई इसका मुझे एंटोनिम बताओ, इसका मुझे सिनोनिम्स बताओ. इन्होंने they have given a sentence so that you can fit in, right? अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, then impunged. And देखो इंग्लिश में आई हैव सीन दैट बैंकिंग एस्पिरेंट्स दे डू vocab, और इसमें 5 क्वेश्चंस तो vocab के आते ही आते हैं. ठीक है, देन दिस इज you can see that fill in the blanks in the following sentences with the most appropriate given options. For example, the evening looked dash against the stretched out sky. So which of the following options fits well, right? I'm not going to read the question because this is not a exam analysis, वो हम further करेंगे. But my point is to just show you कि देखो आपको यहाँ fill in the blanks करना है. Summers dash be really hot at times, so make sure you can stay hydrated, or summer can, summer could, summer might, summer may. So you have to fill in this blank. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, टाइप्स ऑफ इंग्लिश के हो गए. अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगी दैट यूपीएससी एस्पिरेंट कभी भी इस तरीके की इंग्लिश नहीं करता है. दे ऑलवेज डू कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन ही आते हैं. दैट इज ऑल्सो एप्टीट्यूड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन. इट इज नॉट लाइक एनी आंसर व्हिच यू विल फाइंड इन कॉम्प्रिहेंशन. आपको आंसर कॉम्प्रिहेंशन में नहीं मिलता है. इट इज द रिडक्शन एनालिसिस, इट इज द हाउ यू क्रिटिकली जो भी होता है, या व्हाट इज द असम्पशन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज बीइंग आस्क्ड. बट क्या यूपी एस्पिरेंट से करता है? नहीं. बट एक बैंक एस्पिरेंट ये जो है चीज करता है, या फिर एक स्टेट एस्पिरेंट ये चीज करता है. ठीक है, नाउ श्री जतिन गोस्वामी, अ पद्म भूषण अवॉर्डी for the year 2025, is an exponent of which one of the following? So basically these are the form of the dances. I don't know वो शायद dances का जो बाकी के 2 options है वो कट गए. So can I say that this is a current affair? क्या एक बैंक एस्पिरेंट इतना डिटेल में करंट अफेयर करता है? Yes. UPSC aspirant never reads sports. UPSC aspirant never reads awards. But in this paper, one there was a award question, one there was a report question, and one there was a sports question. ठीक है, तो जो लोग साल में, ठीक है, 2-3 एग्जाम देते हैं बैंक्स के, और वो करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, और उनका इतना क्रैमिंग पावर इतना ज्यादा होता है कि ये चीज वो इजिली कर लेते हैं. नाउ दिस इज द क्वांट क्वेश्चन, राइट. This is time and work, right? 95 persons are working for 5 hours to paint 5 walls of equal area. How many hours will 7 persons take 7 walls? So देखो, however ये straight forward नहीं है, but अगर किसी को time and work किसी ने किया है, so वो ये चीज कर सकता है. The context, ठीक है, थोड़ा सा ये यूपीएससी लेवल का है ना. ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की है वहाँ पे फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे जैसे कि बैंक में होता है. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. देन दिस इज व्हाट, दिस इज उसमें वो हम करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट रिलेटेड थिंग. दैट इज दिस क्वेश्चन. एबीसी हैड इन्वेस्टेड इन दिस इज देयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. मतलब उल्टा पूछ लिया. यूजुअली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेश, अब प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट है, आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है. तो कैन आई से दैट दिस इज द सेम पैटर्न, राइट. दिस इज द सेम पैटर्न जो हम बैंक एग्जामिनेशंस में देखते हैं. और इसमें, ठीक है, जब आप प्रीवियस मेरी वीडियो पे जाएंगे, यू विल सी दैट इन क्वांट, चलो मैं ये आगे बताऊंगी डिटेल में सब्जेक्ट वाइज, देयर वर 15 क्वेश्चंस. There were 15 questions, 14 plus 1. 1 was of reasoning approximately, and 14 questions were quant, या 13 plus 2 कैसे भी आप इसको लगा सकते हैं. For English, I want to say that there were 20 questions, in which 5 questions were of comprehensions, in which one was again vocab only. ठीक है, and 15 questions were basic grammar questions and what? हमारे 5 questions vocab के थे उसमें से. ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, ऐसे ही 2025 का पेपर उठाना है और ऐसे एनालाइज करना है कि मुझे कितना आता है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, कितना आता है. इन द सेंस ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा मुझे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आई एम वेल प्रिपेयर्ड. नो, कि आर यू अवेयर, हैव यू रेड समवेयर, राइट, आर यू एफिलिएटेड विद दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, correct, in such manner. So Space Exploration Technologies Corporation is commonly known as SpaceX, right? Falcon is a space vehicle developed by SpaceX. ठीक है, तो ये आपका ये हो गया
अ करंट अफेयर क्वेश्चन। देन यहाँ पे देखो फीफा मेंस फुटबॉल का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगेन अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो यूपीएससी वाला बच्चा कभी भी स्पोर्ट्स नहीं करता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ इफ यू आर अ बैंक एस्पिरेंट, स्पेशली इन द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, आपको है ना स्कीम्स, ठीक है, आपको स्कीम्स जो है बहुत ज्यादा डिटेल में करनी होती है। यू डू स्कीम्स इन अ वेरी डिटेल मैनर एंड विद इन दैट स्कीम्स ऑल्सो, व्हाई आई एम सेइंग स्कीम्स, बिकॉज दिस यूपीएससी ईपीएफओ हैज अ सब्जेक्ट which is named as social security, and then in this social security majorly 3-4 question comes, right, and that is of schemes, ठीक है, that is of schemes। For example, एक तो इन्होंने यहाँ पे निष्ठा पूछा हुआ है, इट इज फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग, आपको पता होगा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पीएम पोषण, इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट मिड डे मील्स, मिड डे मील स्कीम, है ना। इट सेज दैट ओनली, ठीक है, क्या सिर्फ ये स्कूल के बच्चों को कवर करता है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इट डजंट कवर द स्कूल स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो कवर्स लैक्टेटिंग मदर्स, इट ऑल्सो कवर्स मदर्स, इट ऑल्सो कवर किंडरगार्टन स्टूडेंट्स, और नॉट स्टूडेंट्स बट चिल्ड्रन, right? So that is why this statement is wrong. My point is that when you are a bank aspirant, you do schemes, and schemes से I think 3 या 4 questions आए हुए थे in this year, ठीक है। Then this is computer, this is a computer question, and एक आधे एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल नबार्ड में भी आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है। सो दे हैव आस्क्ड अ बेसिक क्वेश्चन दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विद रिगार्ड टू चैट जीपीटी इज करेक्ट, ठीक है। तो आप ये देख लेना पॉज करके। नाउ these are the questions that is related to the economics, or you can say schemes, एक स्कीम का भी है। अब sometimes, not sometimes, अगर आप देखेंगे या तो ये करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, एंड इफ यूर अ बैंक एस्पिरेंट, आप प्रोबेबली स्टैटिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और अगर स्टैटिक इकोनॉमी यू डू नॉट रीड, you read that in current affairs portion. How? You read PIB, correct? The contribution of the services sector in the GVA at current prices in the Indian economy is estimated to be. अब देखो डायरेक्टली फैक्ट्स नहीं आते हैं, जैसे ही बैंक में आता है 22%, 22.5, 24, ऐसा नहीं है, सिंपल दूर दूर इन्होंने दी हुआ है। किसी को ये भी पता है कि अगर 25 मैन्युफैक्चरिंग है ना, 20 हमारा इज एग्रीकल्चर, सो अप्रॉक्सीमेटली 55% कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। वी रीड दैट इन द पीआईबी, हम ये पीआईबी भी पढ़ते हैं। देन अगेन, however, this is not a social security question, this is a kind of economics question, this paper, but we do read that in schemes, that zero effect, zero defect is of initiative of which? It is under Ministry of SME, right? It is under Ministry of SME. Now see this question, that micro, small and medium enterprises is based on which of the following factors, right? That is number of workers, annual turnover, and investment in plant and machinery. Now you also know that whenever the government classifies, it is based on 2 aspects. One is the investment and the other is annual turnover. It's not about the number of workers. So can we say that the answer is 1 and 3, है ना, ये आप पढ़ते हो। Now फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, कितनी बार आप ये रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग निकालती है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, राइट, ऑल ऑफ द अबव आर द पैरामीटर्स। So I can classify that these are basic economics questions, which is little bit in dynamic. You can say that this comes in current affairs, this comes in PIB, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर उठाना है। मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प की है कि कैसे यू हैव टू सी दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ। अब देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चंस इसलिए लेके आई थी सो दैट आपको थोड़ा सा विश्वास हो कि हाँ ये सच है, सो दैट यू बिलीव वट एवर आई एम गोइंग टू से नाउ। सी, know your strengths. So these are your strengths: quant and reasoning, right? Let me take yellow color. Quant and reasoning. So there were total 15 questions, 13 plus 2 या 14 plus 1 कैसे लगा लीजिए, ठीक है। So this is quant and reasoning. English के 20 questions आते हैं, out of which 5 questions were of comprehension, in which 1 question was of vocabulary, right? And other 15, और ये पिछले 3 जो पेपर्स आए हैं इंग्लिश में, this is static. स्टैटिक इन द सेंस कि ऊपर नीचे नहीं हो रही है चीजें, ऐसा नहीं है कि once there was 10 questions, now there are 15, now there are 20. No, it's not happening like this. 20 questions means 20 questions were coming from English. Suppose by chance अगर 20 नहीं आए तो ज्यादा से ज्यादा 16, 17 तो आएंगे ही, है ना। So 20 questions were this, and UPSC aspirant कभी भी vocab नहीं करता है repeating it. Then UPSC aspirant whenever do quant and reasoning, मैं ये नहीं कहूंगी कि you जो see the level is little high for the quant, that is so ट्रू, ठीक है। लेकिन आप लोग भी जो अब बैंक की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, द लेवल यू डू दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई, है ना। तो यहाँ पे आपको एज मिलता है, क्योंकि जनरली इट इज बीइंग सीन दैट यूपीएससी एस्पिरेंट्स डू नॉट हैव, उनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ डू नॉट डू मच हार्ड वर्क फॉर द क्वांट, राइट, क्योंकि दे डू स्मार्ट वर्क, दैट इज यू हैव टू क्वालिफाई द सीसेट सेक्शन, सो दे डू स्पेसिफिक टॉपिक्स ओनली। एंड वन मोर थिंग, नंबर सिस्टम,
ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स नंबर सिस्टम घूट के पीता है और यहाँ पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये आपको नंबर सिस्टम करना ही पड़ेगा, एंड दैट टू विद द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। ऐसा नहीं है कि बैंक वाला नंबर सिस्टम करना है, दैट टू पैटर्न ऑफ यूपीएससी इन विच यू हैव टू इमेजिन सम काइंड ऑफ नंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट। जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ शुगर कोट करके दे रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द हार्ड रियलिटी ऑल्सो कि यार यू हैव टू डू नंबर सिस्टम, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है जी, नाउ कम टू द कंप्यूटर। ठीक है, इन सर्टेन बैंक एग्जामिनेशंस यू डू कंप्यूटर, और कंप्यूटर्स की वैसे सबसे इफ यू गो लास्ट ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इस बार देवर आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। आउट ऑफ दिस 5-6 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस वर ऑफ डायनेमिक इन नेचर लाइक चार्ट जीपीटी, थोड़े से करंट अफेयर्स के थे, तो आप इसको भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम 10 क्वेश्चंस थे एंड इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं द क्राइमिंग पावर इज गुड, एंड आप पहले करते हो तो आप वो चीज़ कर दोगे। ठीक है, नाउ कम टू द करंट अफेयर्स। देयर वर 10 क्वेश्चंस आते ही है करंट अफेयर्स के, एंड अगर आप 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप करंट अफेयर्स भी करते होंगे, नो डाउट यूपीएससी एस्पिरेंट भी करता है। ठीक है, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैटर्स। सी इफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू लेट्स से कोट्स, तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैव अ एज, बट इफ इट इज लेट्स से अवार्ड रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स, तो यू हैव एन एज लाइक फिजिकल हेल्थ, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर ऑल्सो। करेक्ट, नाउ सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट स्कीम्स यू डू इट, राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स यूपीएससी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत करता है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स करता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड है यहाँ पे, यानी कि दोनों को ही एज है। नाउ इकोनॉमी में नो डाउट यूपीएससी एस्पिरेंट डज अ लॉट, बट नाउ यू ऑल्सो डू इकोनॉमी वेरी वेल। मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। सो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस होल लाइफ विदाउट रियलाइजिंग इट, यू आर डूइंग इट एंड यू आर डूइंग इट। अब आप ये चीज देखो, if I add this 15 questions, 20 questions, let's say minimum question 5 is of computer, 10 questions is of current affairs, and let's say two questions is of government this, and यहाँ से let's say 4 questions तो मैंने अभी आपको दिखाई दिए, let's say 4 questions, right? तो ये कितने हो गए? 16 plus 20, 35 and 40, right? So approximately 56 questions comes from these subjects only, and how many questions are there in the paper? 120 questions are there in the paper. ठीक है, तो 56 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। अगर आप इसको कोर प्रिपेयर करेंगे तो आप खुद सोचो कि आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो। 2.5 मार्क ईच एंड 1/3 इज अ नेगेटिव मार्किंग। नाउ लेट्स कम, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, राइट? नो योर स्ट्रेंथ्स। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, बट देन आई हैव टू मेक श्योर कि जो मैं बता सकती हूँ मैं आपको बताऊं। सी, नो योर एवरेज। नाउ दिस इज समथिंग विच यूपीएससी एस्पिरेंट जिसमें भारती होती है, मैंने इकोनॉमिक्स यहाँ पे इसलिए दोबारा ऐड किया है क्योंकि this can be your good also, like that can be your strength also, this can be your average also. That is why I have added this in here also. So one is polity, other is history. Now in this history only modern history is being asked. There is no ancient history in the syllabus. ये आपको पता होना चाहिए. There is no medieval history in the syllabus. So the task is easy. यूपीएससी एस्पिरेंट दोनों चीज को बहुत अच्छे से करता है, मिडाइवल कभी कभी नहीं करता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री इज देयर। आर्ट एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी आपने देखा इकोनॉमिक्स के 4 to 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, राइट? हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, 5 क्वेश्चंस ईच, 10 या 8, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। 2025 में देवर 8 to 10 क्वेश्चंस, एंड इन पॉलिटी, राइट, देवर आई थिंक अगेन 8 तो नहीं थे, या कुछ तो ऐसा था, 8-10 क्वेश्चंस थे। आप देख लेना, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे इसका मोटा मोटा निकालेंगे तो 18 और 4 22, ठीक है, 22-23 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब ये आपका एवरेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये बिल्कुल नहीं आता है, आप इनको छोड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, here you have to do smart work. For example, polity is more scoring, economics is more scoring, modern history is more scoring than art and culture. But even if you do modern history and art and culture, you're not sure, right? I mean the cost benefit ratio is very very low in this. No matter what, आप कितना भी आर्ट एंड कल्चर क्यों ना पढ़ ले, अगर 4 क्वेश्चंस आया, आई डिड अ लॉट बट आई वाज एबल टू डू ओनली 2 क्वेश्चंस, राइट? एंड दैट टू उसमें भी आपको कंप्लीटली नहीं आता है। 3 पॉइंट्स है तो उसमें आपको यू आर एबल टू कि मुझे 2 ही पॉइंट्स पता है, देन यू हैव टू डू अ कैलकुलेटिव रिस्क। माय पॉइंट इज दैट इन दिस सब्जेक्ट्स आल्सो व्हिच इज एन एवरेज, यू कैन स्कोर वेल इन इकोनॉमिक्स, यू कैन स्कोर वेल इन पॉलिटी, बट you cannot leave this subjects thinking that there are 20-25 questions. You cannot leave because 25 questions are right, बहुत है। तो आपको एवरेज है तो आपको स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे कितना टाइम देना है ना? ये आपकी, आई कैन से दैट आपकी प्रायोरिटी पे नहीं हो सकता, लास्ट प्रायोरिटी पे ये होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ पे आपके ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स है, सेकंड प्रायोरिटी मैं अभी आपको बताऊंगी, राइट? जो आपका ईपीएफओ एग्जामिनेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी, एंड दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है,
थर्ड का मतलब, ये प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि सेकंड तब तक नहीं होगा मैं थर्ड नहीं करूंगा. इट जस्ट मीन्स दैट हाउ मच टाइम you have to devote to it. If you're spending 4 hours for the first priority, 2 hours for the second priority, so 2 hours or 1 hour shall be here. चलिए, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट, know your level playing field. Now this is something जो which is UPSC EPFO examination related subjects, and no one do that for any other examination. कोई भी इसको नहीं करता है. कोई भी aspirant आप उठा के देख लो in this entire journey except for the labor kind of examinations, no one does that, like low kind of examinations. Now labor laws, ठीक है, लेबर लॉस जिसमें आप 4 कोड्स पढ़ेंगे बेसिकली, वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस. ठीक है, इस तरीके के आपके 4 कोड्स हैं, इंडस्ट्रियल कोड्स हैं. ठीक है, उसको फिर हमने उसमें फिर और भी एक्ट्स हैं वो हमें पढ़ने होते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशंस दैट टॉक्स अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई. ठीक है जी. अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग. नाउ यहाँ से, ठीक है, देयर वर, ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देती हूँ. देयर वर 15 क्वेश्चंस ऑफ द लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंबाइंड. करेक्ट, लेबर लॉ से ज्यादा आते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से 3-4 आ जाएंगे, यहाँ से ज्यादा आते हैं. देन अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस एंड अगेन देयर वर 15 क्वेश्चंस. ठीक है, देयर वर अगेन 15 क्वेश्चंस. तो कैन आई से दैट दीज आर द 30 क्वेश्चंस व्हिच इज द लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी इक्वलाइजर है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. आपको नहीं आता है तो यूपीएससी एस्पिरेंट को भी नहीं आता है, उसको भी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें कोई डायनेमिक पोर्शन नहीं छुपा हुआ है. एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू इज वेरी स्टैटिक. सबसे पहला बेनिफिट, स्टैटिक होता है, डायनेमिक पोर्शन इसमें नहीं होता है. दूसरा पॉइंट, इट इज वेरी बेसिक इन नेचर. कोई भी कोर नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है बहुत ही बेसिक आता है. तीसरा पॉइंट, दैट इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, इट इज वेरी वेरी हाई. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 8 क्वेश्चंस ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन आप कर पाओगे 4, मैक्स टू मैक्स 5, एंड उसके बारे में भी आप श्योर नहीं होते. लेकिन अगर यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, देन मार्क माई वर्ड्स, यू कैन डू 25 to 26 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी, बिकॉज राइट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं. ठीक है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे. हमारा जो एनालिसिस रहेगा अबाउट द लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग. राइट, सो अब आपको क्या समझ में आया? Nobody has a head start here, right? Not even एक सेकेंड ना, किसी के पास भी यहाँ पे हेड स्टार्ट नहीं है, राइट? लॉज रिलेटेड चीजें हैं, इवन इफ समवन इज अ यूपीएससी वेटरन. ठीक है, अब देखो मुझे, अब लेट्स कंक्लूड आवर वीडियो. लेट्स कंक्लूड आवर वीडियो कि आपको क्या समझ में आया. 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द लेबर लॉज एंड ये ऑडिटिंग. और आई थिंक पहले हमने क्या किया था, कितने क्वेश्चंस किए थे? आई थिंक अबाउट 60 क्वेश्चंस करे थे. कितने किए थे? लेट्स काउंट इट अगेन. कंटेंट रीजनिंग देवर 15 क्वेश्चन. सोशल सिक्योरिटी देवर अबाउट 2 क्वेश्चंस हमने मिनिमम लगाए थे. कंप्यूटर का लेट्स से 5 क्वेश्चंस हमने लगाए थे. एंड इंग्लिश वी हैव दैट 20 क्वेश्चंस फॉर द इंग्लिश. करंट अफेयर्स देवर 10 क्वेश्चंस. और क्या था, और कौन से सब्जेक्ट थे? एक सेकेंड, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल. Content, English, computer, current affairs, economy, right? Economy, let's say 4 questions. Minimum questions लगा के चल रहे हैं. Let's say there are 4 questions. ठीक है, तो अब आप ये लगा लो कितने हो गए, 5, 6, 7, 11 और ये 1 मिनट 41. क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, आप देख लो, ये हो गया 45, 11 एंड 30. ठीक है, सो about 106 questions. 106 questions out of 120. ठीक है, so you can prepare right very well, because बचा क्या आपका जीएस, जहां से आपके let's say max to max let's say 20 questions भी आ रहे हैं out of this polity, out of the history. So that means at least minimum 100 questions out of 120 questions you have the edge. हो सकता है वो आपका कुछ सब्जेक्ट्स आपका एवरेज हो सकता है आपका क्वांट एवरेज हो. ठीक है, हो सकता है आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा हो सकता है आपने स्कीम्स कभी नहीं पढ़ी हो. बट आई बिलीव दैट मेजर चीज जो होती है क्वांट, रीजनिंग, है ना, कंप्यूटर, इंग्लिश, स्पेसिफिकली इंग्लिश. 20 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस आर टू मच, राइट? सो that's it for this video. I hope you are able to see now that you are no lesser than a UPSC aspirant. If you want to kick start your preparation for UPSC EPFO, but आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए.
है ना? आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर कि ये एग्ज़ाम क्या है, क्या पूछता है, ठीक है? और क्या पोस्ट है, आपको उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अभी टाइम है एग्ज़ामिनेशन को, दिसंबर में ऐसा बोला जा रहा है कि देयर इज़ द एग्ज़ाम विल बी देयर इन दिसंबर एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली फॉर एनी अदर एग्ज़ाम्स यू कैन डिवोट लेट्स से 3 to 4 hours of your entire preparation to this, है ना? कुछ चीज़ें तो कॉमन भी हैं बट आपको हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी है, जो आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा, है ना? मैम ने तो अच्छी-अच्छी बता दी। जो आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा, वो ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट दिस इज़ पेन एंड पेपर बेस्ड, दैट मीन्स ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स दैट हैपन दैट इज़ ऑनलाइन, ठीक है? तो आप ऑनलाइन कंफर्टेबल होते हो बट दिस इज़ एन ऑफलाइन। ओह माय गॉड! एक चीज़ तो मैं भूल ही गई बताना और वो पीपीटी में नहीं है, पता नहीं कहाँ है? ये रहा, लास्ट। योर टेंशन इज़ आउट ऑफ द फील्ड, बैंक एस्पिरेंट्स आर ठीक है, थोड़ा-सा उनको बहुत घबराए-घबराए फिरते हैं, है ना? कि हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, वी आर मेड फॉर जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, वी जस्ट नो इट एंड वी कैन जस्ट टिक द मार्क। बट देयर इज़ नो डिस्क्रिप्टिव पेपर। फर्स्ट वीडियो पे जाएँगे, आपको समझ में आएगा कि पेपर 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन यहाँ नहीं होता है, इट इज़ अबाउट फेज़ 1 एन इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव प्लस योर पर्सनैलिटी टेस्ट। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं है। अब आप खुद सोचिए, यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा महारत उसने मतलब कर ली होती है एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कम्पीट विद देम, बट यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ही नहीं। सो यहाँ आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकती है कि आप यू आर यूज्ड टू फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन बट दिस इज अ पेन पेपर बेस्ड। अब दो ठीक है, दो यू नो ऑल दी सब्जेक्ट्स बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज लिटिल बिट inclined to inclination जो है वो यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं, दैट मीन्स inclination towards यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस, राइट? इंक्लेशन टुवर्ड्स यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाए होंगे क्वांट के भी। इनफैक्ट इवन इफ यू नो द टॉपिक ऑफ द क्वांट, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है दैट इज अ यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल पॉलिटी इज देयर विल बी ऑप्शंस, राइट? ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस होंगे बट देयर विल बी ऑप्शंस और द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज काइंड ऑफ यूपीएससी सीएससी टाइप। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, अकस्टम्ड होना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस हैं, और वो तभी होगा जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। हाउएवर अकाउंटेंसी और लेबर लॉस के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर सच एस्पिरेंट्स, तो वो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सो हाँ, ये चीज़ आपके लिए टफ हो सकती है ना? तो चलिए, आई होप दैट हेल्प्स एंड आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वेयर वी हैव ट्राइड टेलिंग यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड please keep watching our further videos. We will bring detailed analysis of the syllabus also. We will bring the analysis of the questions also, so subject wise, ठीक है? So thank you so much from CGB Mentor, Sonika Saini.